Hello students, we are continuing MCQs based on case scenario. So in this lecture we are going to scenario based on equity valuation using free cash flow for equity model. So let us see scenario. So in this case, data given is ABB Limited is an investment company which invests in equity securities and determines the value of equity on the basis of free cash flow for equity model. Recently, ABB Limited has bought shares of Avenger Limited and it wants to determine value of equity share of using FCFE model, which is free cash flow for equity model. The information of company Avenger Limited is given below. So data given is profit of the company rupees 600 crores, तो रुपीज आपके करोड़ में है. इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी रुपीज 1200 करोड़. par value share is rupees 40 each. So debt ratio company 25%. Coefficient of correlation of equity with the market is 0.80. Variance of market index 16 and variance of equity share is 36. So these variances and correlations are given. So risk-free interest rate is 8.7%, market return is 10.3%. So capital expenditure per share is given rupees 48 and the depreciation per share is rupees 40 and change in working capital per share is rupees 4. So you are required to answer the following questions. तो आपके क्वेश्चन है नंबर 1, व्हाट इज द बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अवेंजर लिमिटेड. सेकंड इज व्हाट इज रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ अवेंजर लिमिटेड. तो आपको बीटा कैलकुलेट करने हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, व्हाट इज फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी ऑन पर शेयर बेसिस है, एफसीएफई कितने हैं आपका पर शेयर के बेस पर. फोर्थ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अवेंजर लिमिटेड इफ फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट इन फ्यूचर. तो देखिए आपका जो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी है ये कांस्टेंट रहता है फ्यूचर में. व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ शेयर. एंड फिफ्थ वी आर आस्किंग व्हाट इज वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अवेंजर लिमिटेड if free cash flow for equity is expected to grow at the rate of 4% forever in future. तो स्टार्ट करते हैं. तो पहले डेटा देखते हैं जो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है. डेटा गिवन इज दैट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज गिवन, दिस इज रुपीज 600 करोड़. फिर आपको मेंशन किया है इक्विटी कैपिटल पार वैल्यू भी दी है, तो सबके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. So this will be rupees 1200 crores divided by par value is 40. So it means this will be 30 crore shares. फिर आपको रिमेनिंग डाटा मेंशन किया है. अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आस्किंग व्हाट इज बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ अवेंजर लिमिटेड. So first question we have to find out what is beta of equity and this is company of Avenger Limited. इसमें अब देखिए आपको कोरिलेशन मेंशन किया है इक्विटी का मार्केट के साथ, वेरिएंसेस आपको दिए हैं मार्केट और इक्विटी के. उस केस में ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा. बीटा ऑफ इक्विटी जनरली अगर पी आई इज कोरिलेशन ऑफ इक्विटी विद मार्केट इनको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. कोरिलेशन इज गिवन 0.8. यू कैन सी व्हाट विल बी अवर वेरिएंस ऑफ इक्विटी शेयर आपको है 36. उसका कीजिए आप अंडर रूट, ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. इसका वेरिएंस आपको दिया है 16, तो यू टेक इस स्क्वायर रूट. तो दिस इज कमिंग टू बी अवर 0.8 into 6/4 1.5. सो बीटा इज कमिंग टू बी 1.2. this is beta of equity share of Avenger Limited. You can say which option is correct. So answer is our option number B. Option B is correct. So second they are asking what is required return on equity of Avenger Limited. So we have to calculate required return. This is called required return on equity is KE. So for this purpose we can utilize CAPM model. Formula will be risk-free return plus beta of equity which we have calculated into RM minus RF. So RF is given to us. So RF is over 8.7%. So beta we have calculated 1.2. So RM is also given. This is 10.3. So minus 8.27.
So this will be required return on equity 8.7 plus 1.2 into this is 10.3 minus 8.7, 1.6. So which is equal to 8.7 plus so 1.2 into 1.6, this is 1.92. So plus 8.7. So this is coming 10.62%. This is required return on equity KE. Now you can see which option is correct. So option number C is correct. So answer is option C. So number third, we have to calculate what is the free cash flow for equity on per share basis. Get me इसका फार्मूला. Number third, they are asking what is the free cash flow for equity. This is on per share basis. तो फ्री कैश फ्लो हो गया जो भी आपने अर्निंग्स की हैं पर शेयर के बेस पे उसमें से कुछ हमने मनी इन्वेस्ट कर दिया एक्सपेंशन के लिए उसको माइनस कर लीजिए. तो फार्मूला जिसमें FCFE इज इक्वल टू हाउ मच इज EPS अर्निंग पर शेयर माइनस अब जो एक्सपेंशन के लिए आपने मनी इन्वेस्ट की है विच इज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर कैपेक्स उसको बना लीजिए नेट माइनस कर लीजिए डेप्रिसिएशन एंड प्लस कर लीजिए आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल. तो ये सारा आपका चल रहा है पर शेयर के बेस पर ऑन पर शेयर बेसिस. देखो ये प्रॉफिट आपने अर्न किया है उसमें से ये मनी हमारी इन्वेस्ट हो गई है एक्सपेंशन के लिए. पर कई बार होता है इसमें से कुछ मनी हम बोरो कर लेते हैं जिसको एक डेट रेशो और आपने लिखने इक्विटी के कितने फंड्स हैं तो इसका फार्मूला बन जाएगा इनटू 1 माइनस डेट रेशो. तो डेट की रेशो कितनी है वो माइनस कर लीजिए बैलेंस रह जाएंगे आपके इक्विटी फंड्स जो आपके इसमें से इन्वेस्ट हो रहे हैं. अब आप देखिए आपको डाटा मेंशन किए हैं तो EPS हम कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रॉफिट आपका है कंपनी का 600 करोड़ इसको डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 30 करोड़. तो माइनस अब आपको देखो कैपेक्स दे रखा है क्वेश्चन में ये ऑलरेडी हमें पर शेयर दे रखा है 48 रुपीज़. डेप्रिसिएशन है आपकी पर शेयर 40 रुपीज़. तो कैपेक्स इज 48 डेप्रिसिएशन 40 प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज गिवन 4 रुपीज़. ये आपके आ जाएंगे नेट जो मनी आपने इन्वेस्ट किया एक्सपेंशन के लिए. फिर आपको डेट रेशो भी मेंशन की है 25%. इट मीन्स इनको 1 माइनस 25%. दिस इज कमिंग 20 माइनस तो दिस वन इज अवर 8 प्लस 4 12 इनको दिस इज 0.75. तो विच इज 20 माइनस 75% को 12 इज 9. तो अवर फ्री कैश फ्लो पर शेयर इज ₹11. So again you can see which option is correct. So in this case our option A is correct. So answer is option A. So next fourth point they are asking what is value of share if of Avenger Limited if free cash flow for equity is expected to be maintained in future. अब ये जो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी है ये आपका कांस्टेंट रहेगा फ्यूचर में तो आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ शेयर. इस केस में देखिए फार्मूला बन जाएगा V0 वैल्यू शेयर एट प्राइसिंग वी हैव टू कैलकुलेट. तो आपको देखना है एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो कितने हैं आपका फॉर इक्विटी इन फ्यूचर उसको बस कैलकुलेट कर लीजिए डिवाइडेड बाय के. फ्री कैश फ्लो आपने कैलकुलेट किया है ₹11 और के हमने कैलकुलेट की थी जैसे अभी सेकेंड पोर्शन में जिसका 10.62%. तो डिवाइडेड बाय 10.62%. So 11 upon 0.1062. So this value of share is 11 divided by 0.1062. Rupees 103.258. Now you can see which option is correct. In this case, option B is correct. Again, fifth point is so they are asking what is value of share of Avenger Limited if free cash flow is expected to grow at the rate of 4% forever in future. तो इट मीन किसी जगह कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल. तो फिफ्थ पॉइंट में देखो आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ शेयर. अब इसमें आपकी कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है इट मीन किसी विद कांस्टेंट ग्रोथ इन फ्यूचर. उस केस में आपका फार्मूला बन जाएगा वैल्यू शेयर इज एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो पर इक्विटी शेयर इन फ्यूचर जिसको हम कहते हैं इन नेक्स्ट ईयर जिससे एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो अपॉन KE माइनस ग्रोथ. FCFE बन जाएगा अब आपका 11 रुपीज़ है इसमें ग्रोथ ऐड कर लीजिए 4%.
कई है आपकी 10.62%, माइनर ग्रोथ is 4%. So this amount is coming 11.44. This is 11 plus 4%, 11/44 upon 10 minus 4, 6.62%. So this is coming to be 11.44 upon 0.0662. So this amount is rupees 172.81. Again you can see which option is correct. So option C is correct. So the correct answer is option C. In this lecture we discussed case scenario based on equity valuation using free cash flow for equity model. फर्दर टॉपिक्स we will discuss in next lecture. वीडियो आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.